Question number 4. The question says, see, read the question. Rupees 4,000 amounts to 5,000 in 8 years. 4,000 amounts to 5,000 in 8 years. What does it mean? It means that principal is 4,000, okay, and it amounts to 5,000. Amounts to 5,000 means amount is 5,000, correct? Let's write that. Principal is 4,000, amount is 5,000. And how much time does it take for this 4,000 to become 5,000? 8 years. Okay, so the time is 8 years. Time is 8 years. Now, the second part of the question says, in what time will 2100 amount to 2800 at the same rate? At the same rate means the rate which you find in this part. पहले हमें ये वाले part का rate find करना है, rate. ठीक है, rate of interest ढूंढ सकते हैं. See, this is amount, this is principal, this is time. Let's first find the rate. Okay, how will I find the rate? I know the amount. What is the formula for amount? Amount is P plus I. Correct. So first I'll write the amount here. Amount is 5,000. Okay. Amount is 5,000. Principal is 4,000. And the interest is PRT upon 100. Interest is the formula, full formula, because we don't know the value of interest. I'll write the full formula of interest. What is the formula? PRT upon 100. Okay. Now this 4,000 will come here. 5,000 minus 4,000. And PRT upon 100. I'll put the values here, whichever value I know. So do I know P? Yes, P is 4,000. R is unknown. And time is 8 years upon 100. 5,000 minus 4,000 is 1,000 equals this 0 will cancel. 8 into 4 is 32. So 320 R. Okay. This 320 will come down in the denominator. Try to cancel the numbers. What do you get after cancellation? C. What is the fraction you are getting? 25 upon 8. Question number 4. Let me check the answer. Answer is correct. So when you cancel this 0 cancel, 4 8s are 425s. Correct. So you will get R as 25 upon 8%. Keep it like this because we are going to use it in the second part. Okay. Now what is the second part? In what time? No. In what time? In what time means you have to find the time. Okay. We have to find the time. In what time will 2100 amount to 2800? 2100 amount to 2800 means principal is 2100 and it will amount to 2800.
Okay, principal 2100, amount 2800, time we don't know, and what will be the rate? Same as yes, they have told the rate is same, 25 upon 8. Rate should be 25 upon 8. Okay, 25 upon 8. Now let's again use the formula of amount. Amount is T plus I, because amount is given. Take the amount as 2800, P as 2100, and I will be PRT of 100. Try to solve this. This 2100 will come here and get subtracted. P is 2100, R is 25 upon 8, and time we don't know. 2800 minus 2100 will give me 700. 0, 0 cancel here. So 21 into 25 into T upon 8. Now this 8 will go there. 8 into 700 upon 21 into 25 equals T. 7 ones are, 7 threes are. And so the 100 is remaining. 25 ones are, 25 fours are. So what is the answer you are getting? 32 upon 3. Okay, 32 upon 3. This is years, correct? So इसे proper form में लाना है. अगर proper form में लाना है, तो what will I do? Divide it like this. 3 ones are 3. 2 will come down. 3 zeros are 0. 2 will be the remainder. So this. Wait. I'll explain you in another. हमें इसे years और months के फॉर्म में लिखना है, करेक्ट? years and months के फॉर्म में. तो क्या करेंगे? 32 upon 3 है ना? इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो. राइट इट इन मिक्स फ्रैक्शन. कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? डिवाइड करते हैं. ठीक है? आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो. डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन इसका 10 2 upon 3. करेक्ट? सो 3 10s are 30 plus 2 32. करेक्ट? डिवीजन करके अगर करना है तो 3 10s are 30 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2. सो जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में आता है, कोशेंट है वो साइड में आएगा. ओके, एंड 3 नीचे. सो इस 10 का मतलब है इट इज 10 इयर्स. ओके, इस 2/3 का मतलब है कितने मंथ्स है. ठीक है, तो इस 2/3 को अगर आपको मंथ्स में जानना है कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, व्हाट विल यू डू? यू विल इस 2/3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो. दिस इज 2/3 इयर्स. सो 2/3 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट? 3 1s are 3 4s are. Okay, so 4 2s are 8, means it is 8 months.
10 years 8 months. अंडरस्टूड? ये इसका मतलब क्या है? वंस अगेन आई टेल यू. आपको समझ तो गया कॉन्सेप्ट, बट एक बार फिर से 10 2/3 years. इसका मतलब क्या है? 10 फुल इयर्स है और एक जो ईयर है इट इज 2/3. ओके, सो इस 2/3 जो ये पूरा ईयर नहीं है तो इसको मंथ्स में लिखेंगे. तो इसको मंथ्स में कैसे लिखेंगे? आई विल मल्टीप्लाई दिस 2/3 विद 12 टू नो हाउ मेनी मंथ्स इट इज. ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन होगा तो उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल कम टू नो हाउ मेनी मंथ्स इट इज. ओके, सो 2/3 से मंथ्स पता चल जाएगा 8 मंथ्स. तो फाइनल आंसर यू कैन राइट 10 years 8 months. Okay. Okay, next sum. Now henceforth in all the sums they will club two sums together. पहले फर्स्ट पार्ट करो, फिर फर्स्ट पार्ट को यूज करके सेकंड में करो. जैसे यहाँ पे कैसे किया था? पहले फर्स्ट पार्ट किया, we got the rate and then we used the rate in the second part. अभी सब ऐसे ही आएंगे. ठीक है, let's read the next question. What sum of money? What sum of money? Sum of money means principal. Correct. So we don't know the principal because they are saying what sum of money. Okay. What sum of money lent at 6.5% per annum? Means rate is 6.5% per annum will produce the same interest in 4 years. In 4 years, मतलब 4 साल में will produce the same interest as 7,500 produced in 6 years at 5%. मतलब बोला है कि 7,500 6 years और 5% में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7,500 6 years 5% में जितना इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है, that same interest is produced by this also. क्या कह रहे हैं कि जो इस पार्ट का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, जो इस पार्ट का इंटरेस्ट मिलेगा that will be same as the interest in this part. समझ रहे हैं? ठीक है, I'll read the question once again. What sum of money lent at 6.5% 4 years will produce the same interest as 7,500 in 6 years and 5%? Okay, so first step will be to find the interest here. Okay, so let's find the interest here. Come on, do it. Yes, find the interest in this part. So interest will be PRT upon 100
principal, you have to solve this part. Okay, first. So principal is 7,500, rate is 5%, time is 6 years upon 100. So 0, 0 cancel. 75 into 30, that is 2250. Okay, make a habit of putting the rupees sign always. Okay, 2250. Now this same interest they are saying is here also. स्टार्टिंग में क्या बताया था सम में कि ये जो सेम इंटरेस्ट है यही यहाँ पे भी आएगा. ओके, सो यही इंटरेस्ट यहाँ पे भी लिखते हैं. इंटरेस्ट इज 2250. ओके, एंड नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट. अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. क्या फॉर्मूला आएगा वापस? इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100. जिसको नहीं समझा है what is the interest? Interest is 2250. Principal we don't know. Rate is 6.5. Time is 4 upon 100. ओके, क्या सम था एक बार शॉर्ट में वापस बताता हूँ. उन्होंने बोला था यहाँ का प्रिंसिपल फाइंड करो, ठीक है. और क्या बोला था कि जो इसका इंटरेस्ट ऑफ दिस पार्ट. सो हमने क्या किया, पहले इस पार्ट का इंटरेस्ट फाइंड किया, ठीक है. ये इंटरेस्ट मिला, फिर इस इंटरेस्ट को यहाँ पे यूज किया. ओके, और ये इंटरेस्ट को यूज करके अभी t मिल जाएगा. सो कैसे करेंगे? t 1 जा 25. This 25 will come here, 2250 into 25, and this 6.5 will come down in the denominator. Correct? 6.5. पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं? ऊपर, हाँ, यहाँ से अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई करना है. ओके, so 2250 into 25 into 10 upon 65 equals p. So 5 13 ja 13 5 is 65, right? And 5 5 ja. Now this 13 and 225 is divisible. Divisible by? Sir. What is to be done here? 13 और 225 को कैंसिल करो. कैसे कैंसिल करोगे? कैंसिल. एक मिनट रुको, गड़बड़ तो नहीं किया है? आंसर पीछे चेक करो एक बार, आंसर क्या है? अच्छा, answer is in decimals. Because we are getting the answer in decimal here, so answer will be in decimal. Okay, then no problem. So keep it as it is. Now multiply the numerators first. 2250 into 5 into 10. Multiply the numerators. What is the answer you are getting? C. 2250 into 5 into 10. यहाँ पे करता हूँ मैं सम कंटिन्यू.
11250 upon 30. Okay, so now we'll have to divide also. Divide also this 11250 divided by 30. How much are? Divide this. Do this division. 85 minus 78 will be 7. This 0 will come down 70. So 13 5s are 65. 5 will remain. Again 0 will come down. Okay, 50. 13 3s are 39. 13 3s are 39. 11 will remain. Okay. So I'll put a point here and add a 0 here. Okay. So 13, 8 is our again 104. 6 will remain. वापस एक 0 आ जाएगा. ऐसे करते हैं ना पॉइंट के डिवीजन. फिर 13 4s are 52. बस हो गया यहाँ तक. 13 4s are 52. So यहाँ तक कर लिया enough है. To do this division also, division is important because if you don't do the division yourself, you may face problem later on. Okay. Let me see here. What is the answer behind? 0.85 किया है. अच्छा, उन्होंने राउंड ऑफ किया है. ओके, सो एक मिनट. हमें क्या मिला था? 6/8 मिल रिमेन. तो 80 आएगा. ओके, सो 13 6 are 78. ठीक है, अगर एक और आगे कर दे 13 6 are 78 आता है. ओके, सो ये 4 6 है, तो उन्होंने इसको राउंड ऑफ करके 5 बना दिया है. ओके, so we'll also do one thing. Remember this, whenever you do division, 2 decimal place तक चाहिए तो 3 तक करो and see whether last 2 digits are getting rounded off. Okay, so 3 digits तक करो and last 2 digits को हम round off करेंगे. ठीक है, अगर 45 46 47 है तो it becomes 5. Okay, आपको पता है ना, ये last digit अगर 5 से बड़ा होता है तो number will get rounded off. Okay, अगर ये 5 से छोटा है last digit तो this 4 will remain as it is. Okay, so now is the answer correct? Answer will be 8658.85. 8653. Next. Let's do the next one. A certain sum, question number 6. A certain sum amounts to 3825 in 4 years and 24050 in 6 years.
find the rate percent and the sum. Okay, this entire exercise is done in school, right? Okay. Now what to do? This is a very different type of sum, but once you understand how the numbers work, see, what have they given us is that certain sum amounts to 3825 in 4 years. Means amount of 4 years is 3825. करेक्ट, मतलब जो पैसे थे वो 4 साल बाद 3825 हो गए थे, ठीक है, आफ्टर 4 years. So this is the amount in, write this amount in 4 years. Okay, then they have said, and it amounts to 4050 in 6 years. Means amount in 6 years कितना है 4050. ओके, मतलब आपने किसी को पैसे दिए या किसी से पैसे बोरो किए, ठीक है, 4 इयर्स के बाद अमाउंट था इतना एंड 6 इयर्स के बाद अमाउंट था इतना. तो यहाँ पे 2 साल का गैप है. ओके, इसका मतलब 2 बार इंटरेस्ट ऐड हुआ है. एवरी ईयर इंटरेस्ट ऐड होता है, ठीक है. तो यहाँ पे एक बार ऐड हुआ 5th ईयर में, फिर एक बार ऐड होगा 6th ईयर में. 2 बार इंटरेस्ट ऐड हुआ और फिर ये अमाउंट बना. Am I correct? Okay, so 3825 से 4050 पे आने में 2 बार इंटरेस्ट ऐड हुआ, ठीक है. सो इंटरेस्ट ऑफ 2 years. How will I find the interest of 2 years? I'll subtract these two. अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे 2 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा. ओके, सो 4050 माइनस 3825. Okay, what is the answer? 175 plus 50, 225, I think. Yes, what is the answer? Subtract this. 225. Yes, correct. So you will get the answer as 225. Now, what is this 225? This 225 is the interest of 2 years. 2 साल का इंटरेस्ट है 225. ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? Divide by 2. I'll divide this 225 by 2 to get the interest of 1 year. Okay, so let's find the interest of 1 year. Interest of 1 year. Okay, now I have the interest of 1 year. Okay, what do I need to find here? The rate percent and the sum. Okay, see, अमाउंट मेरे पास 4 years का है और 6 years का है, ठीक है. अमाउंट I'll write here A4. A4 means amount 4 is 3825. Okay, interest of 1 year is 112.5. ठीक है, तो interest of 1 year is 112.5. तो 4 years का interest कितना होगा? What will be the interest of 4 years? 112.54. I will multiply this interest of 1 year into 4. Okay, so let's find interest of 4 years.
So you will get 450, correct? 450. ये मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स. ओके, मैंने क्यों ढूंढा इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स? बिकॉज मेरे पास अमाउंट भी 4 इयर्स का है, अब मेरे पास इंटरेस्ट भी 4 इयर्स का है. ठीक है, I have both of 4 years. Now we have to find the rate percent and the sum. This thing is copied everyone. I'll erase it. The same sum is there in solved example 4. Similar type of sum. Okay. Now what to do? Now we know the formula that amount is P plus I. Amount is P plus I. Okay. What is the amount? Amount of 4 years? 3825. Principal we don't know. And what is the interest of 4 years? 450. See, एक बार याद रखना. You may get confused कि यहाँ पे हमने 1 year का इंटरेस्ट क्यों नहीं यूज किया. आप 1 year के इंटरेस्ट को 1 year के अमाउंट के साथ ही यूज कर सकते हो. 2 years के इंटरेस्ट को 2 years के अमाउंट के साथ यूज कर सकते हो. ठीक है, वो सेम होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास अमाउंट 4 years का था, तो मैंने इंटरेस्ट भी 4 years का फाइंड किया. ठीक है, अब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा. चेक द आंसर बिना द टेक्स्ट. Okay, so when you subtract this 3825 minus 450, 3375 आ रहा है? Yes, you will get the answer as 3375. This is the principal. Okay, this is the principal. Now we have to find the rate. Principal is 3375. ओके, अगर आपको रेट ढूंढना है, ठीक है, तो आपके पास इंटरेस्ट भी है 1 ईयर का. ओके, आप 1 ईयर का इंटरेस्ट यूज कर लो. आप इंटरेस्ट 4 इयर्स का भी यूज कर सकते हो, 1 इयर्स का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, बोथ आर अलाउड. बस आपको जो टाइम है टी, अगर आप 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हो तो टेक टी एस 1. अगर आप 4 इयर्स का इंटरेस्ट ले रहे हो तो टेक टी एस 4. ओके, बट बड़ा नंबर लेके कैलकुलेशन को बड़ा क्यों करना है? ठीक है, लेट्स टेक स्मॉल नंबर. सो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का यूज करेंगे 112.5. ओके, टाइम विल बी 1 ईयर बिकॉज़ 1 साल का इंटरेस्ट है. टाइम विल बी 1 ईयर. So using this information now, find the rate percent. Put these values here and find the rate percent.
Calculation important है. Interest, take the interest as 112.5, principal as 3375, rate we don't know, time as 1 year upon 100. See how I do the calculation. If you are facing problem with calculation, see. सबसे पहले तो this 112.5 can be written as 1125 upon 10. ऊपर से पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 10 ऐड हो जाता है, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 ऐड हो जाएगा. ओके, फिर ये जो 100 है, this 100 will get multiplied with the numerator. यहाँ पे आएगा 100 तो into 100 हो जाएगा. ओके, ये 3375 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, 3375 will come in the denominator into 3375 equals R. ओके, अब धीरे धीरे कैंसिलेशन करेंगे. 5 से कैंसिल करते हैं बिकॉज़ ये नंबर्स 5 से डिविजिबल है. तो पहले तो 0 0 कैंसिल. सो 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 7 then 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25. ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 225 और 625 अगर आपको क्लिक हो जाए दिमाग में कि 225 into 3 करेंगे तो 625 आता है. ओके, नहीं भी आए तो आप 5 से कंटिन्यू करो. 5 1s are 3s are 5s are 5 4s are and 5s are then again 5s. 5 2s are 10, 5 7s are and 5 9s are. आ रहा है, कैलकुलेशन किया, जब रहा है तो अब ये 9 और 27 कैंसिल कर सकते हो. आपको पता है 9 1s are 9 3s are. तो न्यूमरेटर में बचा 10 और डिनोमिनेटर में बचा 3. सो योर रेट इज 10 upon 3%. Convert it into mixed fraction. So you will get 3 1 upon 3%. Three 1 upon 3%. Complete it. Let's come to the next question. Question number 9. Because question number 8 is cancelled. So question number 9. 7. Question number 7. Question number 7. At what rate percent, which you have to find the rate, at what rate percent of simple interest will the interest on 3750, interest on 3750 मतलब 3750 क्या है? Principal. Interest on 3750 मतलब 3750 principal. Okay. Be 1/5 of itself in 4 years. Be 1/5 of itself in 4 years. Interest का क्या बोला? Interest क्या होगा? 1/5. 1/5 means 1/5. Okay. 1/5 of itself. Itself means principal. मैंने हमेशा बताया आपको itself मतलब principal. So interest will be 1/5 of itself मतलब principal. ये होगा हमारा interest in 4 years. So time is 4 years. Correct. Now again interest formula. Interest is
PRT upon 100. इसको पहले कैंसिल कर देते, सॉल्व कर देते इसको. So 5 1 जा 5, 7 जा 35, 5 5 जा. So कितना मिल रहा है 750. So interest is 750. Okay, interest is 750. So interest की जगह पे I'll write 750. Principal is 3750. Rate we don't know. Time is 4 years. Cancellation. Try to do the cancellation on your own. Wrong हुआ तो wrong हुआ, doesn't matter. जितना कैलकुलेशन खुद से करोगे उतना अच्छा होगा. So 0 0 cancel. 2 5 जा 2 2 जा 5 1 जा 5, 7 जा 5 जा. So 750 equals 75 into 2 is 150 R. This 150 will come down. 75 upon 150 R. 0 0 cancel. 15 1 जा 15 5 जा. So R is 5%. Okay, there is another part to the question. To what will it amount in 15 years? ये कंप्लीट हो गया. फिर उन्होंने पूछा है that 15 years में अमाउंट कितना होगा? What will be the amount after 15 years? Okay, so 15 years के बाद अमाउंट कितना होगा? मतलब प्रिंसिपल तो यही है अभी तक. ठीक है, रेट भी मिल चुका है 5%. ओके, टाइम 15 इयर्स के बाद पूछा है अमाउंट कितना होगा. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन यूज करो एंड पहले इंटरेस्ट फाइंड करो. फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 15 इयर्स.
Interest is coming in decimals. Yes. 3750 into 5 into 15 upon 100. 0 0 cancel. 5 1 ja, 5 2 ja. So 375 into 15. How much is 375 into 15? 5625. Divide by 2. Yes. It is 2812.5. And once you have the interest, you can find the amount. हमारा क्वेश्चन अमाउंट फाइंड कर रहा था. ओके, अमाउंट बोला था ना उन्होंने, क्या पूछा था? व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 15 इयर्स. तो अमाउंट ढूंढना था. तो अमाउंट डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, पहले इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है. तो हमने इंटरेस्ट फाइंड किया. नाउ लेट्स फाइंड द अमाउंट. अमाउंट इज p plus i. So p is 3750 plus interest is 2812.5. 6.5. Okay. Done. Next. Question number 9. Now question number 9. Okay. Now, in this question, they are saying that if the interest on 2400, means principal at 2400, the interest on 2400 be more than the interest on 2000, मतलब यहाँ का जो इंटरेस्ट है, लेट्स से I1, ओके, फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट, और यहाँ का जो इंटरेस्ट है, लेट्स से I2, they are saying question 8 is omitted, correct? So वो क्या बोल रहे हैं? The interest on 2400 is more than the interest on 2000 by 60 rupees. इसका मतलब क्या कि ये वाला जो इंटरेस्ट है वो 60 रुपीज ज्यादा है ये वाले इंटरेस्ट से. ओके, ये वाला जो इंटरेस्ट है वो 60 रुपीज ज्यादा है ये वाले इंटरेस्ट से. ओके, और क्या दिया है? इन 3 इयर्स. दोनों का टाइम क्या दिया है? 3 इयर्स. सी, ये वाला इंटरेस्ट इससे 60 रुपीज ज्यादा है, तो उसको लिखते कैसे है? इंटरेस्ट 1 इज इंटरेस्ट 2 प्लस 60 रुपीज. समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो ये पार्ट का इंटरेस्ट है, इट इज 60 रुपीज मोर देन दिस इंटरेस्ट. मतलब ये इंटरेस्ट छोटा है, जब इस छोटे वाले इंटरेस्ट में 60 ऐड करोगे तो आपको बड़ा वाला इंटरेस्ट मिलेगा. समझ रहे हो? ओके, प्रिंसिपल दोनों का अलग है, दोनों के इंटरेस्ट की वैल्यूज अलग है, बट दे हैव सेड दैट एट द सेम रेट परसेंट. तो जो रेट परसेंट है दोनों में वो सेम है. ओके, सो मुझे बताओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT upon 100. ओके, यहाँ पे मैं P1 लिखता हूँ.
बिकॉज यहाँ पे पहला वाला प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। एंड लेट्स नेम दिस एज प्रिंसिपल 2, दो अलग अलग प्रिंसिपल है, बट दोनों का रेट सेम है और दोनों का टाइम सेम है। टाइम भी दोनों का 3 इयर्स बोला है और रेट भी बोला है, दोनों की सेम है। लेट्स से आर आर, दोनों की रेट क्या है आर। सो ये फर्स्ट होगा PRT अपॉन 100, ये I2 के लिए आएगा P2 RT अपॉन 100, दोनों के इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा मैंने, प्लस 60। ओके, कोई डाउट? वापस एक बार बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट है वो 60 रुपीज ज्यादा है सेकंड पार्ट के इंटरेस्ट से। ओके, तो उसको मैंने लिखा कैसे कि द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 60 रुपीज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। So interest का formula PRT upon 100, यहाँ भी PRT upon 100. Now what is the principal for first part? 2400. Okay, rate you don't know, and time is 3 years upon 100 equals PRT upon 100 here also. So here the principal is 2000. Rate we don't know, and time is again 3 years. Upon 100 plus 60. Don't forget to write plus 60. अब ये 0 0 cancel. 24 into 3 is 72R equals, again 0 0 cancel. 20 into 3 60R plus 60. You cannot add these two. Why we cannot add this? Because इसके साथ r है, इसके साथ r नहीं है, इसके साथ एक वेरिएबल है, तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ओके, इधर भी r है, इधर भी r है, तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो लेट्स शिफ्ट दिस 60r on the left hand side. Okay, so this will be 72R minus 60R equals 60. समझ गए? Now what is 72R minus 60R? 12R equals 60. So R मिल जाएगा। Very good. समझ में आया सब? स्लोली करेंगे तो सारे सम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और रिवीजन जरूरी है, जब भी आपको जो होमवर्क मिलता है सॉल्व करने के लिए, उस वक्त आप जब सॉल्व करते हो तो कोशिश करो ये पूरा सम खुद से ट्राई करो। फिर अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो यू कैन लुक बैक कि हमने क्या स्टेप्स किया था। तो एक बार अगर आपको रिवाइज ही करना है, थोड़ा देखना है, रेफरेंस लेना है, तो पूरे सम को एक बार देख लो, ठीक है। कि हाँ पहले इंटरेस्ट फाइंड किया, फिर प्रिंसिपल से ऐड किया, फिर ये किया, एंड देन पूरे सम को सॉल्व करो अलग से। ओके, डोंट जस्ट कॉपी द स्टेप्स, उसमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस से ही होगा इंप्रूव। टेंथ सम, ये है ना टेंथ सम? कुछ कैंसिल तो नहीं है? टेंथ सम divide 15600 into two parts such that interest on one मतलब interest on one part at 5% for 5 years may be equal to the interest on other at 4.5% for 6 years. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि टोटल पैसा है 15,600। ओके, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सिर्फ कहा है टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो इक्वल पार्ट्स नहीं बोला, इक्वल बोलते हैं तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते सीधा, ठीक है, बट ऐसा नहीं कहा है। तो हम इसको कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें? किसी भी चीज को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें? let the first part be x. let the first part be x. ठीक है, तो इस 15,600 में से एक पार्ट x है।
ओके, सो रिमेनिंग कितना होगा, कितना बचेगा? 15,600 में से एक पार्ट x है, सो व्हाट इज द रिमेनिंग? 15,600 तो पूरी वैल्यू है, उस पूरी वैल्यू में से 15,600 में से मैं x को माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो सेकेंड पार्ट होगा, करेक्ट? सी फॉर एग्जांपल 15,600 में से एक पार्ट 10,000 है, तो दूसरा पार्ट क्या है, कैसे मिला? दूसरा पार्ट आपने दिमाग में सोच लिया कि 5,600 है, बट आपने उसको लाया कैसे? इस 15,000 में से इसको माइनस किया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को माइनस किया टोटल में से, तभी सेकंड पार्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को x लिया है और सेकंड पार्ट क्या बचता है फिर, टोटल माइनस द फर्स्ट पार्ट, सो व्हाटएवर इज रिमेनिंग हियर दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, दिस इज माय सेकंड पार्ट। ओके, so let the first part be x, therefore the second part is 15,600 minus x. Now the question is into two parts such that interest on one part may be equal to the interest on other part. मतलब equal बोला है, मतलब दोनों पार्ट का जो इंटरेस्ट है वो इक्वल है, दोनों पार्ट मतलब सी फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, तो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड किया ना, दिस आर योर प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी है, सी द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के बारे में, डिवाइड 1500 into two parts such that interest on one at 5% and 5 years. So first part का इंफॉर्मेशन क्या है, प्रिंसिपल x लेना है, 5% के लिए रेट 5% है और टाइम 5 years है। एंड सेकेंड पार्ट के बारे में क्या बताया है, इक्वल टू दैट ऑन द अदर एट 4.5%, 4.5% मतलब 4.5%, 6 years। अभी तक हमने सम स्टार्ट नहीं किया, अभी तक मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सम बता रहा हूँ कि सम में करना है क्या, ठीक है। सो आपको इतना समझ में आया कि ये 15,600 है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था ना, वो किसी को दिया एट 5% फॉर 5 years, ओके। जो सेकंड पार्ट था पैसे का, वो किसी और को दिया एट 4.5% एंड 6 years, तो दोनों से इंटरेस्ट मिलेगा। In the question they are saying that interest from both the parts is equal, दोनों पार्ट का जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो इक्वल है, ओके। मींस दिस इंटरेस्ट व्हिच यू गेट हियर एंड दिस इंटरेस्ट व्हिच यू गेट हियर, दिस बोथ इंटरेस्ट आर इक्वल, तो उनकी वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटरेस्ट की वो इक्वल आ रही है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, फाइंड द सम, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, I1 is equal to I2, interest 1 is equal to interest 2, ठीक है। What is the formula for interest, PRT upon 100, ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, R1 T1, और सेकेंड पार्ट का P2 R2 T2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो प्रिंसिपल 1 क्या है, x, रेट 1 क्या है, 5, and what is the time, again 5 upon 100 equals principal 2 15,600 minus x, इसको ब्रैकेट में रखना बिकॉज ये वेरिएबल वाला टर्म है, keep it in bracket, into rate into time, so rate is 4.5% and time is 6 years। करेक्ट, अपॉन 100। अब ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे कैंसिल होगा, या तो इस 100 को यहाँ ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 5 जा 25, इस 100 को यहाँ ऊपर ले लो, ये 200 अपॉन यहाँ पे 100 है, इक्वल्स मल्टीप्लाई दिस 6 into 4.5, मल्टीप्लाई दिस
6 into 4.5. 27. You will get 27. इस 100 को तो मैंने यहाँ पे ऊपर खींच दिया. ओके, अब ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया. तो क्या बचा? 25x. ओके, इक्वल्स Let's open the bracket. ये 27 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. When you open the bracket, So multiply the 27 with 15600 first. $27 into 156 करो और फिर आगे दो जीरोस ऐड कर देना. four two one two 0. 421200 minus 27x. यही होगा ना? सी ये 27 को मैंने 15600 से मल्टीप्लाई किया और 27 को x से मल्टीप्लाई किया और बीच में क्या साइन थी? माइनस. ठीक है, अब क्या करें? ये माइनस 27x है और यहाँ पे 25x है, तो इस माइनस 27x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस 25 बन जाएगा, प्लस 27x बन जाएगा, इक्वल्स 421200. ओके, so this will become 52x equals 421200. So x will be equal to 421200 upon 52. आप चाहिए तो डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो या 2 से कैंसिलेशन कर सकते हो, whichever you feel good. ठीक है, या थोड़ा कैंसिल कर दो, नंबर छोटा हो जाएगा. शाबाश, करो करो कैंसिलेशन, डू इट. यू कैन कैंसिल विद 2 आल्सो. 4 से भी कैंसिल हो जाएगा ये. 4 13s are 4 1s are 0, 4 5s are 20, 4 3s are 0 0. When I cancel with 4, I am getting this, and then I'll do division. 0 में गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे आप लोग. 8100 आंसर अगर आ रहा है तो वो गलत है. नहीं सही है, 8100 आ रहा है ना, 8100. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे, जिसको नहीं आया 105300 डिवाइड बाय 13. So 13 7s are 13 8s are 104, 1300. 13 1s are 13, 0 0 ऐड कर दो यहाँ पे. There. Answer is ₹8100. Next क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या पूछा था? डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था. सो आपको x मिला 8100, मतलब आपका एक फर्स्ट पार्ट था 8100. कैन यू फाइंड द सेकंड पार्ट? ओके, सो राइट हियर द फर्स्ट पार्ट is 8100. The second part is 15600 minus 8100. Minus x है ना, 15600 minus x है.
That is 56. 7500. 7500. So roughly what we did in the sum, question में कहा था कि divide this into two parts such that the first part is given is length at 5% for 5 years. Second part जो है उसको 4.5% और 6 years के लिए दिया है और दोनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल है. दोनों के इंटरेस्ट को इक्वल किया, इक्वल रखा, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, तो वी फाउंड x. और x मिलने के बाद x was the first part. So what is the second part? 15600 minus 6. We got the second part. This is my final answer. रुपीस साइन डालना मत भूलना. Copy this. So we have completed 9B and I think 9C is omit. So interest chapter is done. That's it for today.